welcome you to the last plenary of the day, which has been curated by Common Ground. We hope you've been catching up with some old friends and are making some new ones. This closing plenary is going to focus on women as equal citizens in envisioning and stewarding the future of the commons. इस सत्र का केंद्र बिंदु महिलाओं को समान नागरिकों के रूप में भविष्य के कॉमन्स की परिकल्पना और प्रबंधन में शामिल करना है. And for this session, we would like to begin by inviting our panelists on the stage. Ms. Shivani Gupta, co-CEO, Womanity Foundation. I request everyone to give her a round of applause. Next, we would like to invite Ms. Chetna Gala Sinha, founder, Mandeshi Foundation and Mandeshi Mahila Bank. Dr. Soma Kishore Parthasarathi, Mahila Kisan Adhikar Manch. Lastly, we welcome Pradeep Chavan, member of Kalpavriksha. All of them who are pioneers in their areas of work. And to moderate this session, we invite Ms. Kanchi Kohli, a prominent researcher and educator. Thank you to all the panelists. Kanchi ma'am, whenever you're ready, please start the session. Okay. Good evening, namaskar, salam alaikum, any other language in the room, sat sri akal, etc., etc. Welcome to the evening's panel. As you can see, ये लोग बात करेंगे, मैं सवाल पूछूंगी, right? So it's very clearly set up कि मेरा काम कम है और इनका काम ज़्यादा है. Thank you all for staying on पूरे दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए. हमारी गाड़ी already विलम्ब से चल रही है. We are already running a little late. We'll try and bring this panel together, which is in some ways दो very important issues को साथ लाने की कोशिश कर रहा है. Women and commons. And I think these are, it's a very, at one level it looks बहुत easy है इसको साथ में लाना. It's very obvious. But when we were talking, when I was thinking about it, and each one of these great people on the dais today, and आप लोग सारे, इतना आसान भी नहीं लगता है कि how do we actually bring these two things together. So the way we'll try and do it today is basically मेरे 1 या 2 मिनट के बाद I'll try and raise a question clockwise and then anti-clockwise to the group here. And हमारी कोशिश ये है कि after we've spoken for about half an hour or so, it's all about this issue which is for everybody. So we'll open up the session for everybody and have an interaction. And let's hope everybody is had enough coffee and chai and everything so that we can really make this a participatory sort of a session. So as in the introduction, we were talking about it ki mainly we need to try and understand this discourse in a few ways. One, that how can women actually be drivers in the commons discourse? कि मतलब इसकी leadership commons discourse की ना सिर्फ एक लाभार्थी या एक भागीदारी के रूप में, but उसकी अगुवाई जो है, how do women actually lead the discourse in its framing, its implementation, its planning? And I think the idea of it is that if that happens, will the outcomes be different? Will the problems be different? And I think that is what broadly the idea of this session is. As I said, I can give these big words, but उसका actual implementation का भार यहाँ पर है. And I think from the work that I have understood of the people on the panel, जो लोग यहाँ पर हैं, broadly जो काम है women and commons ownership, rights, financial inclusion और governance के ढांचों के साथ, themes के साथ जुड़ा हुआ है.
So my first question to the panel then is that in your work, where do you see the relevance and intersection of women and commons? Yeah? Basically, आप लोग का काम सालों से चलता आ रहा है. It's been there for a really long time, and has, you know, whether it's financial inclusion, rights, ecology, ownership, but where is that intersection, and what are the challenges and barriers to that intersection? In the first round, if you can take about, instead of 5 minutes, 4 minutes to actually respond to it. My apologies, gaadi vilamb se chal rahi hai, and we do want to open it up to everybody. So yeah, please, we can start, as I said, clockwise and then come back. Yeah. Hi. I'm very thankful to Commons Convening for inviting me, and also very thankful to FES to get me on in this sector particularly. सही तो मैं कुछ मैंने जो महिलाओं से सीखा है गांव में वो मैं बताना चाहती हूँ, और वो जो भी सीखा है महिलाओं से वो आगे ऐसे पता चलने लगा कि शायद वही सुन के सरकार की जो नीतियाँ बनती है वो बननी चाहिए, और वो सुन के अगर नीतियाँ बनती तो शायद हम लोग हमारे सवालों को सुलझा सकते हैं। तो ये कहने के लिए मैं मेरा अनुभव बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ, मैं सतारा के एक सूखे इलाके से आती हूँ, खुद की भी खेती है और आसपास भी खेती ही है, और हमारे यहाँ हमेशा सूखा पड़ता है। पर एक बार इतना ज़्यादा सूखा पड़ा कि बिल्कुल पीने को पानी नहीं था, जानवरों को चारा नहीं था, और वैसे तो मैंने महिलाओं की बैंक शुरू की है, तो हमारे गांव में बैंक में एक महिला आई, उसका नाम केराबाई। सही तो केरा का मतलब होता है कचरा, तो आपको ये भी पता चला होगा कि उसका नाम केराबाई क्यों है, यानी कि कचराबाई क्यों है, क्योंकि वो अपनी माँ की छठी बेटी थी, तो इसलिए केराबाई, तो जो नहीं चाहिए माँ बाप को। खैर, तो उसने जब बैंक में आई और उसने कहा कि वो सोना अपना गोल्ड मॉर्गेज करके लोन ले रही थी, सोना रख के लोन ले रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्या आपको ज़रूरत पड़ गई कि सोना बहुत प्रेशियस रहता है, आप उसको लेती हैं, उस पर लोन लेती हैं? तो उन्होंने सहज कहा कि तुमको पता नहीं है कितना बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, कितना बड़ा सूखा है, जानवरों को खिलाने के लिए हमारे पास चारा नहीं है और किसी को भी पीने के लिए पानी नहीं है, पर जानवर कैसे पानी पिएंगे, कैसे मांगेंगे? तो मैं सोना रख के चारा खरीद सकती हूँ, लेकिन आज मैं सोना बैंक में गिरवी रख दूँ लेकिन पानी खरीदने जाऊँ तो मिलेगा नहीं। तो आप लोग क्या करते हो? तो मैंने कहा हमारा काम है बैंक चलाना, हमारा काम है महिलाओं का स्किल केंद्र चलाना, सब जो महिलाओं की लाइवलीहुड के कार्यक्रम चलाना, लेकिन ऐसे कार्यक्रम तो हम नहीं चला सकते, वो तो सरकार चला सकती है। तो केराबाई ने मुझे कहा कि अगर पानी की खोज में मैं बम्बई के सड़कों के स्लम में रहने लग जाऊं तो फिर तुम किसके साथ बैंकिंग करोगी? तो इस सवाल के बाद मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, और फिर हम लोगों ने तय किया महिलाओं के साथ बात करके क्या करें। तो हमने जानवरों का कैटल कैंप शुरू किया। सरकार की कोई मदद नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि 8 दिन के अंदर 7,000 किसान और 15,000 जानवर आ गए एक जगह पे, जिनको पानी और चारा देना था। मैं यहाँ बस अंत में इतना कहना चाहती हूँ कि जब ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ स्कैसिटी है, कुछ भी उपलब्ध नहीं है, वहाँ महिलाएं नेतृत्व लेती हैं और करके दिखाती हैं। और इन महिलाओं ने ये कैटल कैंप 15,000 जानवरों की करीबन 2 साल चलाई, और पानी और चारा जब आता था ना ट्रक से और टैंकर से, तो बहुत बड़ी भीड़ लग जाती थी, लोग ऐसे एक दूसरे को ढकेलते थे। तो उसमें से एक पार्वती करके महिला ने कहा कि आज से ये तय कर दें कि कोई बड़ी लाइन नहीं लगेगी, जो अन्नदाता है उसको पानी और चारे के लिए आप लाइन में खड़ा करेंगे। सोचिए ये बातें जो आती है, जो अन्नदाता है उसको खाने के लिए आप कतार में खड़ा करेंगे। तो ऐसे जब सवाल आए, फिर उसको 2 साल इतना ठीक से महिलाओं ने चलाया, लेकिन वहाँ ख़त्म नहीं हुआ ना सवाल। तो ख़त्म, उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाए।
उसमें फिर ये तय किया गया कि पानी जब ज़मीन का कम होता है तो उसके लिए भी तो किसान जिम्मेवार हैं ही, तो गन्ना कम नहीं लगाया जाए, पहले तो ये तय हुआ। लेकिन ऐसा आसान नहीं है, तो अगर गन्ना नहीं लगेगा तो वो ज्वार और बाजरा लगेगा, तो जानवरों को चारा भी मिलेगा, पानी भी बचेगा। तो ये सब काम करते करते फिर हम लोगों ने वेयर हाउस शुरू किया, जहाँ की बाजरा और ज्वार की फसल को दाम कम हो तो वेयर हाउस में रख के बैंक से लोन ले सके महिलाएं। ये सब मैं कहना, तो इस तरीके से उस अकाल के सवाल को और फिर पानी की बचत तक ये महिलाओं के नेतृत्व ने ले गए। और मुझे यही कहना है कि जब और किसी का नेतृत्व नहीं चलता है तो महिलाओं का चलता है। जहाँ कुछ मिलने को बहुत पैसा नहीं है वहाँ महिलाएं आगे आती हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे जो केराबाई ने कही वो ये थी कि देखो, हमेशा ध्यान रखो, किसानों के लिए इस सवाल पे लड़ना है, गरीबों के सवाल पे लड़ना है, कभी भी सोच में गरीबी नहीं होनी चाहिए। तो महिलाओं से मैंने ये सीखा कि नेवर गिव पुअर सॉल्यूशंस टू पुअर पीपल, दे आर स्मार्ट। I'm not going to waste too much time with my words. Pradeep, straight on to you. Firstly, thank you for being here amongst it was very critical, and I think your work on conservation and जो आपने काम किया है, will be absolutely relevant for this session. Thank you. थैंक यू कांची। एक्चुअली पहले तो आपने मुझे डरा दिया है, क्योंकि प्रश्न पूछूंगी और आप उत्तर देना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, बट आई विल ट्राई टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल। सो बेसिकली आई विल एक्चुअली इंटरसेक्शन जो है मुद्दा, तो उसमें बेसिकली ये है कि एक्चुअली वीमेंस आर एवरीवेयर। सो टू माई माइंड वीमेंस आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, and we cannot deny their integral part. And basically, so we are trying in Bhima Shankar, we work in Bhima Shankar on the local and forest governance. So we are trying to collectivizing women for the conservation and local governance. So basically पहले जो एक मुद्दा आता था कि जो हर जगह है कि being a patriarchal society, हमारे यहाँ पे women को उतना क्या बोलते स्पेस नहीं होता है कि वो आगे आके, या जो भी लोकल लेवल का जो गवर्नेंस है या मैनेजमेंट है या जो कॉमन्स का मैनेजमेंट या कंजर्वेशन है, तो उसमें ज़्यादातर रोल विमेन का मान्य ही नहीं होता है। और अगर कोई लोग मान्य भी करते हैं, लेकिन उनके लिए उतना वो जो स्पेसेस है वो क्रिएट नहीं हो पाते हैं। द सेम थिंग इज़ लाइक इन भीमा शंकर। सो इन भीमा शंकर ऑल्सो बीइंग अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग विमेन ऑन द फोर फ्रंट and on the local and for the forest and local governance का जो issues है उसके लिए लाना बहुत मुश्किल होता था। तो वो तो होता था, लेकिन उसमें भी वहाँ पे एक प्रोसेस शुरू किए कि उनको कलेक्टिवाइज करना, फिर उनको अलग अलग एक्ट्स, जो भी FRA है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, या जो भी अलग अलग फॉरेस्ट के रिलेटेड एक्ट है, जो फॉरेस्ट एक्ट है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, या फिर हमारे जो ग्राम पंचायत एक्ट है, या जो 73rd जो अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसके तहत जो, क्योंकि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं इट इज़ नॉट अ 5th शेड्यूल्ड एरिया, सो दैट्स वाई द पेसा एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन दैट एरिया। सो द ओनली स्पेस वी कैन फाइंड आउट इज़ द 73rd अमेंडमेंट, उसमें कि ग्राम सभा का जो महत्व है, और ग्राम सभा में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व जो विमेन का है, तो वो महत्व कैसे वहाँ पे बरकरार रहे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लेवल जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस है तो उसमें कैसे लाया जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा एक प्रयत्न भी हुआ, उसके लिए बहुत सारे महिलाएं आगे भी आई है, लेकिन जैसे उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि बीइंग अ पैट्रियार्कल सोसाइटी और ज़्यादा पुणे मुंबई और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ के नज़दीक होने के वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसलिए विमेन का जो भी वो वोकल होना चाहिए, या वो आगे आके जो भी डिसीजन मेकिंग में उन्होंने एक्चुअल में उतरना चाहिए, तो वो स्पेसेस ही बहुत सिकुड़ से गए हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि एक्चुअली every village has a 6 mandatory gram sabhas. So their gram panchayat should have a 6 mandatory gram sabhas. But in these villages, in spite of we are trying to have
as much as awareness, as much as education to the people about the having a gram sabhas in that area. So उतना होने के बजाय भी वहाँ पे ग्राम सभा होती ही नहीं है, मतलब होती ही नहीं है, मतलब कागजों के ऊपर होती है लेकिन एक्चुअल ग्राम सभा होती नहीं है। और अगर ग्राम सभा भी होगी तो लेकिन उसका कोई भी अवेयरनेस नहीं होगा, लोगों को बताया नहीं जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसफंक्शनिंग है तो वो बहुत मायने रखती है कि ये जो इम्पैक्ट उनके ऊपर हो रहा है कि महिलाओं का जो आगे लीडरशिप डेवलपमेंट होना चाहिए या डिसीजन मेकिंग में आना चाहिए, तो वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब बहुत कम या धीरे धीरे से हो रहा है। तो इसलिए दैट प्रोसेस इज़ वेरी अंडुलेटिंग। तो कई बार वो ग्राफ ऊपर जाता है, कई बार वो नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो इट्स ऑलमोस्ट डिपेंड ऑन द पार्टी पॉलिटिक्स एंड वहाँ का जो भी मेन मतलब जो भी मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी है उनका भी माइंडसेट बहुत मायने रखता है। तो वो है, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें महिलाओं को बहुत सारे स्पेसेस है। एक तो ग्राम सभा है, दूसरा बहुत सारे मतलब एफआरए का अंतर्गत जो भी सीएफआर उनको जो मिला है, तो सीएफआर का जो भी मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में बहुत सारी स्पेसेस उनको है और हम वो एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। फिर अलग अलग जो कमिटीज़ गांव में बनी जाती है, जैसे कि इको विलेज डेवलपमेंट कमिटीज़ है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है, इवन जो वाटर के रिलेटेड जो भी अलग अलग कमिटीज़ है, तो उनमें जो भी जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे स्पेसेस है और वो भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वो भी चीज़ें वहाँ पे बहुत सारे मायने रखती है। तो ये बहुत सारे एक्चुअली अभी टाइम बहुत कम है, बोलना चाहे तो बहुत सारा बोल सकते हैं। तो ये चैलेंजेस भी बहुत मायने रखते हैं कि विमेन लीडरशिप जो इन चीज़ों में होनी चाहिए, तो वो आगे जाती है तो कई बार वो पीछे उसको खींचते हैं। तो तो ये चैलेंजेस है और हम कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत। थैंक यू। एंड मतलब आई थिंक ये सवाल जो है हम लोग के इट्स ऑन ऑल आवर माइंड्स हाउ टू ड्रॉ दैट इंटरकनेक्शन, एंड आई थिंक इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन and it's not an easy straightforward answer, but I think if the idea is today to actually open it up to ourselves to see if we can find those placeholders for that answers, you know, to actually, and with just that I'm going to just segue into you, Shivani. Yeah, thank you for that. नमस्ते सभी को। और मेरी संस्था महिला और भूमि अधिकार के इंटरसेक्शन पे काम करती है। तो इस रीमिट में हम इनहेरिटेंस पे काम करते हैं, लैंडलेस वुमेन को कैसे लैंड मिलेगी उस पे काम करते हैं, और ऑफ कोर्स फॉरेस्ट पे भी काम करते हैं, जिसमें दोनों, जैसे इन्होंने बोला, इंडिविजुअल राइट्स एज वेल एज कॉमन्स पे भी काम करते हैं। एंड आई थिंक अगर हम ब्रॉडर पिक्चर पेंट करें एंड स्पेसिफिकली इफ यू ड्रिल डाउन ऑन टू कॉमन्स ऑल्सो, आई वुड से देयर आर 4, यू वर टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस, राइट? व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड? आई थिंक काफ़ी सारे डिस्कशंस हो चुके हैं, बट to me, the principle of the game is ki if I'm doing the labor, I should get the fruits. And if you look at most land-based livelihoods, most of the labor is coming from women, but the ownership and access and the decision-making is not with them. And this is not a conversation about men versus women. So it should not be construed in that way, right? It is ki jiska hak hai usko milna chahiye. So if I look at the barriers, Kanchi, I think I'd want to put them in 4 basic buckets. Patriarchy. You know, I don't want to expand on that. I think you've talked a lot about it. The second is resource availability, right? All kinds of resources, be it money, be it people who know the technology, be it people who know the laws, how to write applications, just lack of resources. वो commons के लिए ज़्यादा valid है. In the shorter term, I would say, because it's a process which has just become digital. A lot of people don't know how to handle those technologies. Of course, vested interests हैं जो applications approve नहीं करना चाहते हैं. You know, those kind of things are happening. The third is that the whole market is very unorganized. Land level पे भी काफ़ी unorganized है. At a village level also, ये किसका पट्टा है वर्सेस क्या कॉमन लैंड है वर्सेस वो है, उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही questionable and sometimes poor है. So it's a very unorganized market, right? And we all know that caste plays a very big role in land, more than gender, if I want to kind of say that. And I'm happy that everybody is agreeing on that. So it's a very unorganized market.
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेटा. डेटा है तो वो सही है या नहीं है, और नहीं है तो हम डिसीजंस कैसे लेंगे. एंड इट डेटा कैन हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. Simple things like getting more funders to the system is a problem, right? Now, in all this, women are central. Because, like I said, to me, it is about, agar wo kaam kar rahe hain, to unke paas hak hona chahiye. So, I would kind of bucket it that way to answer your question. Yeah, thank you. All yours, Soma. थैंक यू. सभी साथियों को जिंदाबाद सलाम. I want to start with the words of Bodbai. Bodbai is a woman leader, a Netri from Chhattisgarh. और जब हमने कॉमन्स की चर्चा शुरू करी थी, हम फिलहाल मकाम की बात कर रहे हैं. मकाम महिला किसान अधिकार मंच है. हम 2014-15 में शुरुआत हुई थी, एंड इट वाज अ रोलिंग शुरुआत, क्योंकि अलग अलग राज्यों में बैठकें हुई थी कि हम महिला किसान की बात तो कर रहे हैं, महिला किसान है कौन. सरकार तो कहती है कि महिला किसान वो है जिसके नाम पर ज़मीन होगा, वही किसान है. और ज़्यादातर महिलाओं के नाम पर ज़मीन है ही नहीं, चाहे किसानी की चाहे दूसरी. तो अगर महिला के नाम पर ज़मीन नहीं है, क्या वो किसान नहीं? आंकड़े जैसे भी हैं वो तो बताते हैं कि एटलीस्ट 72.5% ऑफ द वर्क इन फार्मिंग is being done by women, and yet you say महिला किसान नहीं है. तो इस सवाल से हमने शुरुआत की कि महिला की पहचान किसान के रूप में हो, उत्पादक के रूप में हो, निर्णायक के रूप में हो, क्योंकि घर परिवार से लेकर समाज में और हर इकाई में जो फैसले बारीकी से होने हैं, और प्लीज़ नोट कर लिया जाए, बारीकी से जो फैसले हो रहे हैं उनको निपुणता से लेना और कायम करना, उसमें महिला ही जुड़ी हुई है, जिम्मेदार हो जाती है. उसको काम दे दिया जाता है कि निपुणता से होगा तो तुम कर लेना, और फिर श्रेय हम ले लेंगे. सवाल ये नहीं कि महिला पुरुष के बीच के द्वंद्व की, लेकिन सवाल ये है कि हम किस तरह से, किस नज़रिए से अपने परिवार, अपने समाज, अपने शासन व्यवस्थाओं में महिलाओं को दर्जा देते हैं. So we started with this question of giving status to women as farmers and producers and recognizing the value of their work. So the discussion came to work and where we work. So the women said, we work on the farms, we work on the land, we work in the water, we work everywhere you see, in our homes, for elders, for children, for animals, wherever you see, we are working there. So what do you call a workplace? तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारी कॉमन्स के. कॉमन्स वहाँ है जहाँ हम काम करते हैं. हमारे लिए तो हर दहलीज कॉमन्स है. और बोडबाई ने इस पे बहुत बारीकी से कहा कि मैं तो जंगली हूँ, मेरे लिए कॉमन्स जंगल भी है और वो घास चारा के इलाके भी हैं जो हमसे हड़पे जा रहे हैं और उद्योग को दिए जा रहे हैं. वो पानी भी है जो स्रोत घटे जा रहा है, लेकिन जिससे नाले कटे जा रहे हैं ताकि उद्योगपति अपना पानी ले ले. तो वो कॉमन्स का जो आज मुद्दा आप कह रही हैं, ये तो हमारे लिए जीवन धारा है और हमारी ज़िंदगी की हर रूह में गड़ी हुई है. She said it in her local language. I'm trying to interpret that, but not very effectively, I'm afraid. So it really connected to what this morning Zeenat mentioned as social ecology, and what our friend Sumi Krishna, a founder member of Makam, calls the genderscapes. कि जहाँ भी हम landscapes की बात कर रहे हैं, landscapes is used very commonly now in the terminology on the commons. Landscapes is all about the commons and how they relate to different synergies and syncretic living with nature and not from nature. So it's not an extractive system, we live within nature, was our first lesson. The second lesson that, may I take another minute? Sure, sure. The second lesson that we learned from this discussion of should we have a program on forest rights or on the commons, उनका कहना था ये समझ सबकी नहीं है. आदमियों को
और जो बड़े बुद्धिजीवी कहते हैं अपने आप को, वो धीरे धीरे समझेंगे। तो वन अधिकार से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हमारे आयाम बदलते जाएंगे, हम सोच बदलेंगे और उनको ये भी समझाएंगे जब महिलाएं ज़मीन अधिकार की बात कर रही हैं तो वो सिर्फ अपनी ज़मीन का टुकड़ा पे अपना नाम डालने की बात नहीं कर रही हैं, वो इस ज़िंदगी के धरोहर की बात कर रही हैं जिससे हमारी जीवन शैली और जीवन धारा चल रही है। So they're talking about commons not as a piece of land with their name alone. That is important because that gives us legal status and standing and independence to do what we want to do as women. But it's also about the commons. And the commons are part of our livelihoods, whether we acknowledge it or not. It is a part of our everyday livelihoods, our everyday dincharya. And we need to look at that as an integral part of our survival and sustaining as a humanity. And they were not talking about the human race alone. So these are very significant learnings that we are trying to integrate into our strategies. I'm sure we'll have time to talk about that. Superb. I think that's been extremely inspirational, and I think what is really coming out from आप लोग जो कह रहे हैं is that commons discourse जो है, जो it's not, I mean like it's not rocket science, मैं कुछ नई बात नहीं कर रही हूँ, just to जो socio-political structures हैं उसमें embedded है. So exactly how all the problems in society and all the big category problems of society which women and in any case are confronting, the commons discourse is very much embedded in that as well. And I think what is coming out very clearly, even the words that all of you have used, you know, things like patriarchy, resource deficits, those are big category of problems, and those have been intergenerational problems in some senses to address. Now, if we've identified those as big category problems, and it's not like they're going to vanish, कल तो नहीं निकलने वाले हैं, और I think सालों के जो काम हैं वो एक तरह से not just ownership या confidence building या financial inclusion का काम है, in some senses वो power structures को change करने का काम है. It's very much part of it. Now, and that's what I've gathered from what all of you are also saying. Now, if you have to say that in terms of women's leadership in the commons discourse, और हमको कुछ systemic और systems change बदलाव चाहिए, तो obviously ये बड़े category तो लंबे चलेंगे. शुरू कहाँ से करें? Where do we start for each one of these? And of course, it's not to say you have not already started, but if you have to start off building this synergy between commons and and women today, and through all of what you've said, even if it's a minor, small thing, where do we start? And if you've already started, that's superb. We can all just follow you. That's great. As promised, it's going to come back. कुछ तो शुरुआत हुई है. 6 साल का अरसा हुआ है जब हमने वन अधिकार को लेकर महिला और कॉमन्स का कार्यक्रम शुरू किया था. तो उसके तहत ईशान भी यहाँ हैं, अकोले भी यहाँ हैं. They'll be able to share the live examples of what we've been talking about. We started by literally asking ourselves that question कि कहाँ से शुरू करें. कुछ ठोस होना चाहिए, कुछ जो महिलाएं खुद अपने आप कर सके और फिर एक आयाम बन सके. तो पहली बात तो ये आई कि हमारी जब सुनवाई ही नहीं है तो हम करें क्या. हमें ऐसी जगह बनानी है जहाँ हमारी सुनवाई हो. इतने एसएचजी ग्रुप्स बन रहे हैं हर जगह, लेकिन वो महिलाओं के मुद्दों को लेने के लिए नहीं है. वो हमारी जो श्रम है उसके इस्तेमाल को परिवार के लिए लेने का एक माध्यम है. तो हमें अपना मंच मजबूत करना होगा, और वो मंच ज़रूरी नहीं है कि वो एसएचजी ग्रुप हो. जो वन अधिकार कानून में जगह बनी है वो वन अधिकार समितियां हैं, वो ग्राम सभा है. तो वहाँ पे महिलाएं कैसे अपनी आवाज़ बुलंद करें, कैसे अपने नेतृत्व को कायम करें. सो बिल्डिंग लीडरशिप ऑफ women on terms that they understood to assert themselves in their homes, in their societies, in their claiming of rights became our first agenda. And for that, we started a women's leadership process
that they would define what their plans for the next year were. And this was a very bottom-up process. जिसमें मेन मुद्दे उन्होंने जो तय किए कि हमारी अगुवाई, जिस लव से आपने शुरुआत की, मुझे बहुत खुशी हुई, अपनी अगुवाई हो, अपने संसाधन हो और अपना श्रम भी उस संसाधन की गिनती में गिना जाए। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने कहा कि हमारा शरीर भी इस पूरे संसाधन की खेल में खिलवाड़ का हिस्सा बन गया है। तो हमारे श्रम, हमारी यौनिकता और हमारे कॉग्निटिव जो हमारे ज्ञान को भी अहमियत मिले, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए। जो बड़ा मुद्दा उस वक्त हमारे बीच आ रहा था वो था स्ट्रक्चरल वायलेंस का, जहाँ जो क्लेम कर रही थी औरत, चाहे परिवार में चाहे समाज में, अपने हक के उसका नाम पहले दर्ज किया जाए, वन अधिकार के जो क्लेम्स भरे जा रहे थे उस पर बहुत हिंसा घर में भी हो रही थी, और जो पटवारी थे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़ाने में ROR में रेजिस्ट कर रहे थे, जो ग्राम सभा थी वो महिलाओं का नाम पहले दर्जे पे कैसे आ सकता है, her name will come as dependent, which is again the big P in the room. So उन मुद्दों को हल करते हुए हमने कोशिश की कि महिलाएं खुद अपनी अगुवाई करें, उनकी लड़ाई में उनकी आवाज़ मजबूत हुए, उनके संगठन मजबूत हुए, और उसको लेते हुए फिर वो तय करें कि किस किस चीज़ पर आगे बढ़कर वो काम करना चाहें। तो अभी जो गढ़चिरौली का एग्जाम्पल अभी चर्चा में आया था एक सेशन में, महिलाएं उसमें नेतृत्व भी कर रही हैं, मास्टर ट्रेनर भी बन रही हैं, लेकिन डिस्कोर्स अपने शर्तों पर बना रही हैं कि हम वही नहीं करेंगे जो हमें बताया जा रहा है, हम ये तय करेंगे कि हमारी प्राथमिकता क्या। तो उसमें अन्न सुरक्षा नहीं लेकिन स्वायत्ता की बात आ रही है। And the claim to the forests and to the forest resources as food sovereignty is the largest issue that we have been trying to deal with. So all of them have undertaken in different ways a documentation of bin boi fasal. Bin boi fasal meaning the uncultivated foods. That what is it? They started during COVID, and they started documenting with young people because we believe in an intergenerational approach, which is very important for us because the issue is intergenerational, but somewhere the learning between generations stops. And COVID became a problem, but an opportunity for that intergenerational interdependency to become part of the process. I can elaborate on that, but I think these are the key issues that I'd like to Absolutely flag. clear. Thank you so much. Thank you, Soma. Tough act to follow. So I think I will not repeat that the solution has to come from within, because it is not a solution which is generic. What we could potentially do is do some frameworks and say, okay, maybe you work in that. Food security, livelihoods, you know, typically what we've seen is around 35 to 40% of the household's income comes from forest produce, which is primarily gathered by women, primarily, right? So apart from the fact that they have to be localized, I think there are 3 or 4 pieces that we could potentially evaluate. One is, what does the commons mean for the women, right? A lot of time, it's more than the livelihoods. It's the dignity, identity, but also the safety and security of actually food gathering, so that she's not harassed by the authorities, etc., etc. So one angle could be that, right? It's a relatively low-hanging. Nothing is low-hanging, firstly, but it's relatively low-hanging. The second is knowledge systems. I feel the way traditionally, and all of you are experts. I'm like your spokesperson here. The way traditionally people have in India have passed on knowledge is oral, and the way we recognized in today's Western world is a written form. So a lot of times the traditional knowledge is not recognized as a knowledge system. And so how do you mainstream it? Either make it documented or we recognize the oral system as a knowledge system, whatever. I think the third is getting women on the table. That's like a no-brainer, but I guess the question is, should we change the table itself?
And that's a big question to which I don't think anybody has an answer today, but something to ponder about. And I think lastly, if you were to look at three aspects, one is governance. What are the pieces in which women can come in? Financial resources, be it loans or access to markets. You know, how does she get access to financial resources? Because that's the first step towards it, and I'm sure Chetna ji will talk about it more. But I think it's also about recognition of her in the community as somebody who can steward the commons properly for the next generation. Thank you. It's an amazing panel, isn't it? Actually, when we started in Bhima Shankar, so that time there was no rocket science or there was no any framework ki how we can go ahead and do the things, or maybe the involved have a active participation of women in the local and forest governance. But slowly and gradually we realized that women are not coming in the meetings, they are not taking any part in any sorts of activities and all that. So then we realized that no, we should have women participation, but how? So that was the question. Then we started like looking after the SHG as a one of the key factor where we can collectivize women on the common grounds. So then we started collecting women or gathering women of different villages और उनको इकट्ठा लाना, और then उसमें कुछ तो कल्चरल एक्टिविटीज़ या कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स या कुछ ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, लीगल वर्कशॉप्स, तो इस तरह के कुछ मुद्दे हमने वहाँ पे किया. लेकिन ये एक प्रोसेस हुई, उसके बाद में कुछ लर्निंग्स भी हमको मिले कि अरे इसमें बहुत सारा चैलेंजेस भी है, बहुत सारे कुछ काम हमने किए हैं, लेकिन बट दैट वो जो काम हुए हैं तो उसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखना भी ज़रूरी है, ऐसा हमको एक लर्निंग्स उसमें मिला. तो उसमें एक क्लियर कट ये था कि जब कभी भी हम काम शुरू करते हैं एक कम्युनिटी के साथ और जहाँ पे वेरी हार्ड या जो क्या स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्की होती है और विमेन ज़्यादा बाहर नहीं जाती है या कुछ भी उनको एक्सेस नहीं मिल पाता है, एक्सपोजर नहीं मिल पाते हैं, तो वहाँ पे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे पर्सनली लगता है, सो दैट इज़ द 1-to-1 कम्युनिकेशन विद द विमेन. And not only with the women but with the younger women also, means जो child है. तो उसमें ये सब मुद्दों के बारे में थोड़ा सा, not ये सब मुद्दे, लेकिन बेसिक ग्राम सभा, उनके राइट्स या FRA, CFR या इवन कॉमन्स मीनिंग क्या है उनके लिए, तो वो सब चीज़ों पे एक मुझे लगता है कि एक डायलॉग उनके साथ होना चाहिए. ये पहली स्टेप होना चाहिए. बाद में फिर कॉमन्स के रिलेटेड जो भी मुद्दे आते हैं या जो भी इश्यूज आते हैं तो उसको फिर आप कहाँ पे रेज करेंगे. तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीगल और अदर काइंड्स ऑफ स्पेसेस विच दे हैव टू रेज दिस इश्यूज. So then Gram Sabha is the very much important in that thing. So and before Gram Sabha, I think before Gram Sabha, their self-help groups is a first space. I think for me, self-help group is the first space, and then from the self-help group they can raise their issues on the Gram Sabha level. And on the Gram Sabha level, there are different sorts of committees or maybe implementation of different kinds of programs and schemes. तो उसमें भी उनका एक रोल एक अच्छी तरह से होना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है. और तीसरा जो मुद्दा हमें मुझे लगता है कि लाइवलीहुड्स का जो है कि लाइवलीहुड्स एक बहुत, जैसे आपने भी बोला कि लाइवलीहुड्स एक बहुत एक सहज मतलब अहम मुद्दा है कि जो हमेशा एक सताता रहता है कि अरे लाइवलीहुड्स ऑफ द वीमेन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट उसमें एक जो चीज़ मतलब हमें लगती है, पहले लगती नहीं थी लेकिन आफ्टर इवेल्यूएशन हमको वो बहुत स्ट्रांगली लग रही है. थैंक्स टू जॉय, एक्चुअली उन्होंने वो बहुत मुद्दा सामने रखा कि उन्होंने कहा कि हम जैसे वुमेन लेड या वुमेन के जो भी लाइवलीहुड्स इश्यूज है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम फिर वैसे ही सोचते हैं कि अरे विमेन कैन डू दीज काइंड्स ऑफ एंटरप्राइजेस और ओनली विमेन कैन डू दीज, मतलब ये विमेन के समझे जाने वाले लाइवलीहुड्स ऑप्शन, हाँ स्टीरियोटाइप्स, तो वुमेन के समझे जाने वाले स्टीरियोटाइपिंग एंटरप्राइजेस है. तो क्या हमको उस लाइन पे जाना है
या सिर्फ विमेन को नहीं, उनको सिर्फ पार्टिसिपेशन करना है इसके लिए हमको जाना है, या विमेन एज अ दे हैव अ फंडामेंटल राइट ऑफ दैट थिंग्स, मतलब इवन डिसीजन मेकिंग का फंडामेंटल राइट है क्या, उसके मतलब क्या बोलते हैं परिप्रेक्ष्य में अगर हमको जाना है तो फिर हमको उसी तरह सोचना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत बार ऐसे ही होता है कि फिर जेंडर स्टीरियोटाइप होता है और फिर हम विमेन के मुद्दे अलग और मेन के मुद्दे अलग, इस ऊपर बहुत सारा बहस करते हैं और फिर उसमें दरार पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, कि जैसे हमको भी वो उसका अनुभव आया। तो मुझे लगता है कि ये एक मतलब ये ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि इसी तरह जाना है, लेकिन हमें जो लगता है कि अभी इतने साल का जो काम किया है उसके ऊपर कि इस तरह अगर अब गए तो थोड़ा बहुत हम उसको एक न्याय दे सकते हैं। थैंक यू। ट्रस्ट भी बहुत सारे लोगों के लिए रॉकेट साइंस ही है बट थैंक यू। सही, तो मैंने सोचा था कि मैं शायद बैंक के बारे में आज मैं नहीं बोलना चाह रही थी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन या ऐसे, पर अभी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन तो मुझे ये भी बहुत मन होने लगा कि क्यों नहीं वो बात भी की जाए कि अगर महिलाएं सोचती हैं तो वो क्या कर सकती हैं। तो जो आप बता रहे थे कि शुरू कहाँ से किया जाए, मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि जब महिलाएं शुरू करती हैं नेतृत्व में आने की, तो वो जो जहाँ ले जाती हैं वो काफ़ी अलग रहता है। और उसका उदाहरण मैं अब बैंक का ही देना चाहती हूँ, यानी जो मानदेशी महिला बैंक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बैंक शुरू करूँगी, या मेरे दिमाग में भी नहीं था कि बैंक चालू भी करनी है। लेकिन हमारे यहाँ फिर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि सातारा से करीबन 100 किलोमीटर पे गांव है, उषा मैम तो आई हैं वहाँ, तो वहाँ महिलाओं को बचत करनी थी, और महिलाओं को बचत करनी थी, छोटी छोटी बचत करनी थी, 5 रुपये 10 रुपये, और 2-3 बैंकें थी हमारे गांव में, लेकिन गांव में कहा कि इतनी छोटी रकम के खाते हम नहीं खोल सकते हैं। तो हमारी एक महिला जब आई मेरे पास कि बैंक खाता नहीं खोल रही हैं, तो फिर ऐसे ही सब महिलाओं में बात हुई कि अगर बैंक खाता नहीं खोल रही तो क्यों नहीं हम अपनी बैंक शुरू करें महिलाओं की। तो मुझे इतना आसान नहीं लगा तब कि ये पॉसिबल है या नहीं है, पर मैंने कहा कि ठीक है हम लोग कोशिश कर सकते हैं, और हमने बैंक की शुरुआत करने का सोचा। जब बैंक का एप्लीकेशन हमारा गया रिजर्व बैंक में, तो हमारी महिलाएं जो भी शुरू की जो प्राथमिक मेंबर थी, प्रोमोटिंग मेंबर, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनका अंगूठा था, तो उस आधार पे हमको डिनाई किया गया कि आपकी प्रोमोटिंग मेंबर्स को लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो कैसे बैंक का लाइसेंस दिया जाएगा। और मुझे लगा कि सही है, हमें नहीं मिल सकता है। मैं बम्बई से आई तो मैं खुद नर्वस थी, मैं रोने लगी, और मेरे बहुत सारे दोस्त जो MBA फाइनेंस वगैरह थे उन्होंने कहा कि वैसे भी तुम क्या सोच रही हो। लेकिन मैं जब गांव में आई ना, तो आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अरे लिखना पढ़ना हमको नहीं आता है, हम लोग सीख लेंगे, उसमें तुम क्यों रोती हो। और उन्होंने लिखना पढ़ना सीखा, और 6 महीने के 7 महीने के बाद हम लोग फिर गए, तब मेरे साथ महिलाएं आईं, और उन्होंने वहाँ मीटिंग में ये बताया कि हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है पर गिनती आती है, और उन्होंने कहा कि हमको कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट, कोई भी मुद्दल रकम का ब्याज गिनने के लिए बोलो, अगर हमको नहीं आए तो मत दीजिए लाइसेंस, लेकिन आपके ऑफिसर को भी बोलो कि कैलकुलेटर के बिना आप गिनती करके दिखाइए, राइट। ये मैंने बहुत हज़ारों बार ये कही है, मैंने सोचा था आज मैं ये नहीं बताऊंगी सही तो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं बम्बई में रहती, अगर मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों के आसपास रहती, तो वहीं मेरा आत्मविश्वास ख़त्म हो जाता। लेकिन मैं इन महिलाओं के साथ थी जिनकी जिद थी कि करके दिखाना है, और उन्होंने ये कॉन्फिडेंस लिया, और उसमें बहुत उतार चढ़ाव है, ऐसा नहीं है कि आसान है ये बैंक खड़ा करना और चलाना, टेक्नोलॉजी, ये बहुत चीज़ें हैं, पर हर चीज़ को जम के सामना करना, और वो जब अपने आसपास महिलाएं वो आत्मविश्वास लेके आती हैं ना, तो हमें मिलता है। मैं अंत में फिर भी एक नया कार्यक्रम हमारी महिलाओं ने शुरू किया है, वो मैं बताना चाहती हूँ। हमारा रेडियो है, और हमारे रेडियो में महिलाएं चलाती हैं और महिलाएं आती हैं। तो हम 2022 में बहुत बड़ा सूखा, मतलब
हीट बहुत बढ़ गई और वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सरकार को स्कूल बंद करनी पड़ी। तो हमारे यहाँ कासारवाड़ी की महिला ग्राम पंचायत थी, उन्होंने कहा ये बराबर नहीं है, हमको कुछ तो करना ही चाहिए, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो बच्चे घूमेंगे, बीमार पड़ेंगे, हमको कुछ करना चाहिए। तो महिला ग्राम पंचायत, जिला परिषद स्कूल और प्राइमरी हेल्थ केयर तीनों ने मिलके MOU किया और उन्होंने तय किया कि बच्चों को ये जो गर्मी से बचाना ही है, तो इसलिए बच्चों को खेलने के लिए सावली वाली जगह खड़ी की, पीने के पानी का प्याव खड़ा किया और ये एक ऐसा मॉडल किया कि उसके बाद 2022 के बाद बहुत सारे गांव ने, और सस्ता, बहुत महंगा नहीं, कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं, बहुत सारे गांव आगे आ रहे हैं वो मॉडल को आगे ले जाने के लिए। तो मेरा कहना है कि अगर टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज ये भी बात करते हैं तो समस्याओं का आसान, सरल सोल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशंस महिलाएं खुद बता सकती हैं, लेकिन ज़रूरत है कि उनको सुनना, ज़रूरत है कि उनके साथ पार्टनरशिप करना, ज़रूरत है कि वो मॉडल ऐसा खड़ा किया जाए कि पूरे सब गांव में ये पॉसिबल हो सके। थैंक यू। Absolutely superb. So, with a very succinct, clear panel, we have 10 minutes for everybody to chip in, add on, ask questions, and continue the inspiring conversation. So, if there's anybody who can just raise their hands, there are mics around. No? Where? Yeah, here. Yeah. So you can either ask anybody in the panel or any specific person or to everybody, and then I'll choose who I give the mic to. Yeah, thank you. A very good evening. I'm Dr. Hemlata Manglani from Central University of Rajasthan. Thank you for giving the very insightful session to all of us. It was very interesting, and to know the very, very interesting examples on it. One sir has talked about the self-help groups, कि किस तरह से महिलाओं को हमें self-help group से जोड़ना चाहिए और commons को भी हम उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो जिस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिस सिद्धांतों पे काम करते हैं, जिन पर्टिकुलरली जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे हमें हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में पशु सखी, कृषि सखी, इस तरीके के बहुत उदाहरण मिलते हैं कि कैसे ट्रेनिंग्स उनको दी जाती है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि एक सामुदायिक संसाधन सखी को भी हम उसमें जोड़ दें ताकि कॉमन्स के जो भी गोल्स हैं हम अचीव कर सकें और इस तरीके की ट्रेनिंग और इस तरीके की नॉलेज जो है वो बहुत ईजी हो जाए बाकी महिलाओं के लिए। तो दैट इज़ वन क्वेश्चन, बट द सेकेंड इज़ माई कंसर्न, and that is about we all talk about the leadership of women and the gender inclusivity. और हम जब बात करते हैं कि महिलाएं निर्णायक होती हैं, महिलाएं अगर नेतृत्व करें तो वो बहुत आगे जाती है, लेकिन ऐसे उदाहरण हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि कुछ और बहुत सारी जगहों पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो महिलाएं अगर सरपंच भी है, पंच भी है, या किसी भी तरीके से पार्लियामेंट्री या और भी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में गांव के स्तर पर अगर वो इन्वॉल्व भी है, तो वो खुद से उन कामों को आगे बढ़कर नहीं करती हैं, या तो उनके परिवार के लोग करते हैं या उनके हस्बैंड्स करते हैं। तो ऐसे में जब हम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, जहां हम पार्लियामेंट्री सीट्स और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी ऐड करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स हो जाता है। तो हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विच इज स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द जेंडर इक्वालिटी। थैंक यू। Just for, because there are more questions, if one or two of you want to take more questions, or okay, all right, okay. That behind there, and then we'll come ahead. Yeah. Leave no one behind. Which hand? मैं बस इतना ही पूछना चाहता था कि जो हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हैं अभी देश में, वीमेन लाइवलीहुड प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, NRLM पूरा अधिकतर महिलाओं के साथ काम करने का कोशिश करता है,
लेकिन ये कार्यक्रमों में हम जो नेतृत्व वाला जो भाग है महिलाओं का, वो कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं? तो क्या ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि वो स्ट्रेंथन हो? I think we've got 3 questions. I'll definitely forget the questions. I don't know if you will. So if we can start with just if one or two of you want to react to these questions, and then we can take another round. Should I go? Okay. So I think I can take probably both of them together, which is SHGs and having one more Sakhi in the SHGs, and I think Ishan's question is how do we actually shift the power structure, not in name only. So I think काफ़ी related है, and there is no easy answer to it. Firstly, right? It happens to every जिसे कहते हैं हर तबका जो marginalized है वो इसके through जाता है, of first being participant, then being on the table, and once you get on the table, what we can do is help them in getting all the capabilities, the skills, the resources, and then it has to be self-driven, but also the community starts to realize the importance of it. So it's a process. And from a power structure point of view, especially when it comes to land, it is a really long process. Because land, any kind of ownership and access is equals to power in history, right? Wars are fought because of it. So I think it's going to be a long struggle. So there's no easy answer to what you've asked, Ishan, but we have to keep at it all the time. मैं थोड़ा NRLM के संदर्भ में कहना चाह रही थी, जो आपने लाइवलीहुड्स के संदर्भ में महिलाओं का नेतृत्व, जिस तरह से सरकारी कार्यक्रम बने हुए हैं, हम सब जानते हैं कि उसमें महिला बेनिफिशियरी के नाम से पुकारी जाती है, और फिर आप कहते हो वो पार्टिसिपेट करे। कई उदाहरण हमारे सामने हैं जहां महिलाएं खुद तय करती हैं कि लाइवलीहुड्स का कौन सा मुद्दा है कि वो तय करें और उस पर काम करें। तो ये सोच और एक विचारधारा की बात है कि हम कहाँ से शुरुआत करें। या तो हम उनको लाभार्थी के रूप में देखते जाएं और उनको शरणार्थी बनाए जाएं, सरकार पे, संस्था पे या पितृसत्ता पे, क्योंकि ये सारी ढांचागत व्यवस्थाएं पितृसत्ता में गड़ी हुई हैं। और या तो हम ऐसी अप्रोच लें जहाँ पे गलतियाँ हों लेकिन महिलाओं को अपनी जगह मिले, जिसका मतलब है कि वो संगठन में विश्वास करें, जहाँ महिलाएं अपने अनुभवों से, आपकी और हमारी धरती को सींचें, अपनी सीख से, अपने ज्ञान से, जो वो करती आई हैं अपने जंगलों में भी, अपने घरों में भी परवरिश करती आई हैं। तो इस तरह से अगर हम महिलाओं को जगह दें, उनकी बात को सुने, तो उस सुनने पर हमारे इंडिकेटर्स की बात सुबह हुई थी, उस सुनने पर हमारे कार्य भी तय हों, जहाँ पे हम उनको प्राथमिकता दे सकें। मैं ना थोड़ा ऐसे बोलना चाहूँगी कि महिलाएं ग्राम पंचायत में चुन के आती हैं, पर शायद उनके पति काम देखते हैं, ऐसे हमने देखा है। हमने ये भी बहुत देखा है कि बहुत कुछ महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं, और हमने ये भी देखा है कि बहुत कुछ महिलाओं को अपने घर से काम करने के लिए सपोर्ट भी मिलता है। तो मुझे ये बहुत लगता है कि जब महिलाओं के नेतृत्व के बारे में बात आती है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं, एक है प्राइड और दूसरा है सेलिब्रेशन। उन महिलाओं को सेलिब्रेट कीजिए जो आगे आती हैं। कैसे करेंगे उनको सेलिब्रेट? उनको फेमस बना के कीजिए, उनके बारे में अखबारों में लिखिए, उनके वो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि उन महिलाओं के पति को भी सेलिब्रेट कीजिए जो अपने पत्नी को नेतृत्व देता है। और हमारा एक कार्यक्रम है कि हम बड़े कार्यक्रम में जो पति अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है आगे आने में, उसको भी अवार्ड देते हैं। और मर्दों को अच्छा लगता है अवार्ड लेना, तो उनको अवार्ड दीजिए ताकि वो महिला दूसरे भी मर्दों को लगे कि हाँ, मैं भी अपनी पत्नी को आगे जाने दूँ। मुझे लगता है गांव में ऑपरेट करते वक्त ऐसे सेलिब्रेशंस बहुत ज़रूरी रहते हैं। प्रदीप, अवार्ड लेना है? लूँगा। नहीं, मुझे एक चीज़ कहनी थी कि जैसे आपने बोला कि ये पैराडॉक्स होता है कि नहीं, क्या मतलब विमेन लीडरशिप इतनी डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है।
तो उसमें मुझे लगता है कि हमने फिर से फ्लैशबैक में जाना चाहिए, क्योंकि इवन हम अगर रूरल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे पेट्रियार्की इतनी स्ट्रांग है कि बचपन से ही वो उनमें क्या मतलब उनके खून में वो इतनी घुस गई है कि वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल और इवन जो बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस न होना या ज़्यादा लोगों में न बोलना या आगे ज़्यादा न आना, तो आई थिंक कि वो भी एक बहुत अहम चीज़ है कि जो बहुत सारे विमेन, क्योंकि सभी विमेन में लीडरशिप डेवलपमेंट हो ही नहीं जाती है, ऐसा भी है। कुछ ऐसी क्या बोलते हैं उंगलियों में काउंट की जाए इतनी महिलाएं होती है कि जो थोड़ी आगे आती है या वोकल होती है, लेकिन बाकी की महिलाओं में वो इतना इम्पैक्ट होता है कि एक तो घर से, बहुत सारे महिलाओं के घर से भी उतना ये नहीं होता है, उनको स्वायत्तता नहीं होती कि वो आप आगे जाए, तो वो बहुत पीछे खींच लेते हैं उनको। तो आई थिंक ये सब सोशल साइकोलॉजिकल इवन जो हिस्ट्री है वो भी हमको देखना उसमें बहुत ज़रूरी है, ऐसा लगता है। Thank you. One question here. Let's take one or two more questions and then because I नमस्ते, think we are मेरा नाम बुधाजी डामसे है, शाश्वत ट्रस्ट जुन्नर संस्थे से आया हूँ। मेरा ज़मीन से लेके सवाल और सुझाव भी है कि जैसे कि महिलाओं का उनके पिता के यहाँ भी 7/12 पे नाम नहीं होता, और जब शादी करके आती है तो ससुराल भी नाम नहीं लगाते। तो हम लोगों ने 2008-10 में एक काम किया था, एक 800 लोगों की ज़मीन का बंटवारा करने का काम किया। उसमें बहुत सारे पुरुष लोगों को बताया कि अपने पति का नाम अपने साथ लगाओ। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अरे मैं लगाऊंगा और कुछ ज़मीन पत्नी के नाम जाएगी, लेकिन वो छोड़ के जाएगी तो मेरी ज़मीन पे लेके जाएंगी। तो हमने कोशिश करके 300 पुरुष लोगों को तैयार किया और 300 पुरुष लोगों ने अपने पत्नी का नाम 7/12 पे लगाया। और ये अच्छी बात हो गई कि उस समय गवर्नमेंट का 42 करोड़ का कार्यक्रम सैंक्शन हुआ था, तो उनको 50,000 का काम मिला, फिर उनके पत्नी को भी 50,000 का काम मिला। तो बाकी के लोगों को लगा कि अरे मेरे पत्नी का नाम लगाते तो मुझे भी पैसा मिलता और मेरी भी ज़मीन तैयार होती। ये अच्छा एक रिजल्ट हम लोगों ने देखा है। धन्यवाद। Thank you. Two questions here and then I think I'll come back and we'll have to unfortunately close. मैं मोहन हीराबाई हीरालाल। मुझे दो साम्यता दिखाई देती है कि लिंग भेद आधारित महिलाओं के और पुरुष के बारे में जैसे हम पितृसत्ता की बात करते हैं, वो सारी सिमिलरिटी जो है वो सत्ता या आर्थिक केंद्र में जो लोग हैं और जो सामान्य लोग हैं जिसको हम कॉमन पीपल कहते हैं, आज हम कॉमन्स की बात कर रहे हैं तो पीपल्स में भी कॉमन है, तो इनमें भी साम्य है। तो महिलाओं की स्थिति और सत्ता और आर्थिक सत्ता के संदर्भ में कॉमन पीपल की स्थिति एक जैसी है। तो इस परिस्थिति में कॉमन पीपल को महिलाओं के ग्रुप के साथ में और महिला ग्रुप को कॉमन पीपल के साथ में काम करना क्या फ़ायदेमंद होगा? One more and then yeah. अच्छा आप बोल लीजिए। हेलो, मैं सत्य सेवा जगत ओडिशा से आया हूँ। मेरा कहना है कि हम लोग जो फॉरेस्ट कम्युनिटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ जो महिलाएं हैं ज़्यादा करके वो एंटरप्रेन्योर ओरिएंटेड भी होते हैं, क्योंकि वो एनटीपी के साथ में काम करते हैं, फार्म बेस में काम करते हैं, जंगल के जितने कलेक्शन एनटीपी कलेक्शन उसके साथ भी काम करते, उसके बाद जो जानवर होते हैं उनका भी देखभाल करता है, उनका भी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन ऐसा है कि उनका रिसोर्स के ऊपर थोड़ा सा कम उनका भागीदारिता रहता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में ट्राइबल कम्युनिटी में ज़्यादा वो अच्छा डिसीजन लेते हैं महिला लोग। मेरा कहना है कि वहाँ सरकार क्यों एनकरेज ज़्यादा नहीं करता है कि उसको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ भी यंग महिला अभी अच्छा से आते हैं, तो उनका भी फॉरेस्ट रिसोर्स के ऊपर भागीदारी रहेगा, उसको मैनेजमेंट में भी उनका भागीदारिता रहेगा। Quickly if you can add and then we'll just take one last reaction. मेरा तो थोड़ा सवाल ही है कि थोड़ा कंपैरिजन मैं यहाँ रख रहा हूँ छोटा सा, कि पिछले 20 साल में आप देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में या फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में
महिलाओं के रोल में काफ़ी बदलाव आया है, महिलाएं पुरुषों के साथ काफ़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन कॉमन्स के गवर्नेंस की बात करते हैं तो मुझे वहाँ वो बदलाव नहीं दिख रहा जो दूसरे सेक्टर में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद सरकारी व्यवस्था को और यहाँ जो बैठे हैं सब लोग जो डेवलपमेंट सेक्टर से आए हैं, इनको भी थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा कि क्या हमारे ऐसे रोल्स हैं, क्या हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कितने सेंसिटिव हैं। मैं एक उदाहरण दूं, राजस्थान में बंजर भूमि विकास बोर्ड बना हुआ है जो कॉमन्स के मैटर को देखता है, वहाँ एक भी महिला सदस्य नहीं है। तो ऐसे अगर प्लेटफार्म और फ्रेमवर्क होंगे तो हम शायद वो गोल नहीं प्राप्त कर पाएंगे कि कॉमन्स की गवर्नेंस में हम इक्वल भागीदारी अपना सकें। तो कहीं रिथिंक करने की जरूरत है। Thank you. जगवीर सिंह। Thank you. So maybe we can start from this side. अगर चेतना जी you want? No, I was wondering. Okay, चलिए आप. sorry. No, that's okay. It's all comments. I just wanted to respond to the first and partially to the second. जो मोहन भाई ने सवाल पूछा है, ये कई सालों से ये बात आ रही है कि महिलाएं और वंचित समाज के लोग समुदाय साथ इकट्ठा काम करें। एक सिंथिया स्टीफन ने एक नाटक कई सालों बनाया था जिसमें उसने उल्लेख किया था कि जहाँ जो मजदूर है वो खेत पे काम करके घर जाता है और उस पे बहुत पीड़ा है, उस पे बहुत एक्सप्लॉयटेशन का प्रहार है, और वो घर जाता है और उसकी पत्नी भी घर जाती है उसी काम में, दोनों काम करते हैं उसी के खेत पर, लेकिन पिटती वो महिला है। घर जाकर जब वो अपनी त्रास व्यक्त करने के लिए जरिया ढूंढता है तो वो अपनी ही औरत को पीटता है। और यही है त्रासदी जेंडर एक्सप्लॉयटेशन एंड जेंडर ऑपरेशन की, कि वंचित में सबसे ज़्यादा वंचित समाज की महिला है। ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग की महिला वंचित नहीं है, कि वो दबी नहीं है, कि वो ही व्यवस्थाएं उस पर भी हावी हैं, लेकिन उसकी वंचितता अलग है। और जो गरीब महिला है, जो दलित समाज की महिला है, जो वंचित समाज की महिला है, उस पर वही पितृसत्ता फिर हावी होती है जो अन्य वंचित वर्ग पर भी हावी है। तो साथ काम करना ज़रूरी है, बशर्ते महिलाओं की जो वंचितता का आधार लिंग भेद है उसको जगह मिले, उस पर भी काम हो, ताकि महिलाओं की वंचितता पर भी मुद्दे उठाए जाएं और साथ काम किया जाए। जहाँ सवाल ये आता है कि मैं जो जगवीर जी ने बात की थी, सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करना चाह रही थी, जिस पे बात नहीं होती है, कि टेक्नोलॉजी, जहाँ टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस साथ ही जुड़ जाते हैं, शासन की दिमाग में वो दोनों चीज़ साथ जुड़ जाती हैं, वह अरे महिलाएं क्या करेंगी। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ पे महिलाओं ने अपनी तकनीकी निकाली हैं और उन्होंने चैलेंज किया है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस को। तो मैं अपनी बात वहीं छोड़ती हूँ। थैंक यू। Okay, thank you. 30-second reactions, get all the questions together, because otherwise I'm going to get a beating. Yeah. You want to start? I think it's not, I'm not going to address any question, but I just want to say कि जैसे किसी ने बोला कि कॉमन्स में ये शायद मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है, how to talk about women, how to give places to women, and how to look at women as propellers of change rather than beneficiaries, right? But if you go 30 years ago, it was the same in education. How many people were sending their daughters to for education? गाँव में कितनी लड़कियों को भेजा जाता था। राजस्थान में तो खैर मतलब मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे मालूम है। तो आई थिंक इट्स अबाउट मेन स्ट्रीमिंग इट, राइट? आज हमने बात करी है, 10 लोग जाके इसके बारे में बात करेंगे, फिर इट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। और अगर हमारा ये ड्रीम है कि 20 साल बाद जब ये कॉन्फ्रेंस हो तो हम ये सेशन ना करना पड़े, तो दैट्स ऑल्सो गुड इनफ, आई थिंक। सो इट्स अबाउट स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन एंड स्टार्टिंग द वर्क। हर मुद्दे का समय आता है, शायद कॉमन्स का समय आ गया महिलाओं के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब एजेंडा कहाँ से आता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। अगर एजेंडा गवर्नमेंट से आया या एजेंडा मार्केट से आया
तो वहाँ महिलाएं नहीं जल्दी आएंगी। पर अगर एजेंडा गांव से आया और ऐसी बात हुई कि मेरा गांव, मेरी ज़मीन, मेरे लोग, तब महिलाएं आगे आती हैं। तो मुझे लगता है अगर महिलाओं को लाना है ना, तो एजेंडा में 2-3 चीज़ें होनी ही चाहिए कि हमारे गांव के बारे में मुझे बहुत अभिमान है, मेरे आसपास के जंगल के बारे में मुझे बहुत अभिमान है, मेरी ज़मीन, मेरी पानी के बारे में मुझे बहुत डिग्निटी है, प्राउड है। ऐसा एजेंडा आएगा तो महिलाएं आएगी। तो मुझे लगता है अगर महिलाओं को लाना है तो ये प्राइड और डिग्निटी और सेलिब्रेशन को लाना चाहिए। नहीं, अभी मुझे डिफरेंट मुद्दा इसमें डालना था कि हम महिलाएं बोल रहे हैं और मतलब महिलाएं और पुरुष दोनों बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डिप्राइड बाकी की जो LGBTQ या जो थर्ड जेंडर हम जिसको बोलते हैं, तो उनका भी, क्योंकि उनको भी इसमें मतलब उनका भी बहुत इंटेग्रल पार्ट है और उनका भी राइट है, तो हम वो मुद्दा भी यहाँ पे छूटने जाए, ये मुझे कहना था। ठीक है, थैंक यू। Thank you for further complicating an already complicated Hello. problem. But I'm sorry, I don't know. Can we continue or because there are many hands? Ma'am, this side. No, I'm happy to continue. Yes. We have to close, but okay, one last question. Okay, one last question. Two. But only 2 of you will answer. Okay? No, okay? Yes. Okay. Yeah. Ma'am, Quick questions and quick answers, please. यस, महिलाओं के बारे में जब बात हो रही है और अगर फॉरेस्ट बेस्ड चीज़ों में, तो FRA एक्ट के तहत जो CFRMC बनती है उसमें 50% प्रावधान महिलाओं का होना ज़रूरी है, पर अभी वो चीज़ नहीं हो रही है या फिर कई पैमाने पे वो हो रही है पर वो उसको पता ही नहीं है। तो शायद इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो CFRMC की प्रेसिडेंट है, उसका एक थोड़ा सा अभ्यास होना ज़रूरी है और उन सबको इकट्ठा लाके उनकी जो शुरुआत रही है वो शायद बाकी औरों के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रयास हो सकता है, क्योंकि गढ़चिरौली में हमने ये CFRMC का जो गठन करना शुरू किया है, वहाँ पे हर एक ट्रेनिंग में ये बताया गया है कि 50% महिला होना ही चाहिए और देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स विलेजेस जहाँ पे CFRMC की अध्यक्ष महिलाएं बनी हुई है और काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। तो मेरा ये सुझाव भी रहेगा और इस तरीके की चीज़ों में अगर जैसे NRLM में अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है बनना है तो वो महिलाओं का ही बनता है, उसी की वो अध्यक्ष भी होती है। अब तो बहुत सारे रील्स भी इस तरीके से बनने लगे कि भाई महिलाएं कर्जा ले जाने मांगने के लिए ट्रैक्टर पे जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग है। तो FRA में या फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा अगर वो काम कर रही है एंड वी बिलीव कि उसकी लिस्ट बढ़ती जा रही है कामों की, तो शायद इन चीज़ों को भी हम इंक्लूड करें, ये मुझे लग रहा है। Thank you. There are a couple of questions here. One is when I was to make a film on women empowerment a couple of years ago, I discussed this with a friend of mine, and the first reaction was, please don't make it, because we already have enough. Now, fighting for women's rights and then also working so much harder at home or wherever else, it just becomes so much more hard work. One, and and in terms of sharing of the load or sharing of the work, that does not clearly happen. And number two, when so many things about SHGs or there is somebody, a volunteer who is going to do so many other jobs, but who is going to tell the young boys, young men and the men that these are the roles that you can also take up and pick up and go forward, so that the woman also can go out there and do whatever she wishes to do. Thank you. 2 quick reactions. Anybody wants to react? Yeah. Second question or last one? So a very good point. I think involving boys and men is super integral, and sometimes depending on the way you design the intervention, it can also be the first step, right? Because it's not only कि परिवार के लोग, community के जो stakeholders होते हैं, उनको भी साथ लेके चलना है, क्योंकि हमें जो भी काम करना है वो it is not कि हमें कुछ चीज़ तोड़नी है, हमें
ज़्यादा लोगों को जोड़ना है उसके साथ, तो सबको साथ लेके ही चलना है. And I think from a boy's perspective and from a young girl's perspective also, what we have seen across all our programs across the world is role models can play a very important role. I think those were the 2 points I had. Thank you. I'll just close with 4 points, which I think there have been many points that have been raised today. And I think I'll just try and, there is no way I'm going to sum it up, but if in terms of 4 messages in terms of linking process and power structure, सबसे पहला, सोच में कमी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए. If we start with the point that we believe and start with the open mind. Number 2, the language of the discourse needs to change. Once the language changes, the actors in the system, in the room completely change. Number 3, establish and identify spaces through which we can demonstrate what we can do with this open thinking and the language, so that it becomes real. It actually comes to light. And 4th, I think, is just the message that there is no future of commons without women. Everything that it's almost like wearing a frame and a lens, that we are actually wetting everything through that. And it's only then that we can even think of imagining leaving no one behind. Thank you so much. Thank you for everybody. And thank you for an absolutely inspiring session. Thank you. हम इस प्लेनरी के मॉडरेटर कांची जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने विचारणीय सवाल पूछे, और साथ ही प्लेनरी के स्पीकर्स को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी गहराई से जवाब दिए. हम इस प्लेनरी के श्रोताओं का भी शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने उत्साह के साथ सुना और बेहतरीन सवाल पूछे. मैं अब दीप्ति अमेटा जी, जो कॉमन ग्राउंड से हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे सभी को सम्मानित करें. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you again. Before we close for today, we would like to take a brief moment to launch the publication Our Commons. Our Commons is conceptualized as a biennial publication to build a shared vocabulary around the significance of commons in today's world. It explores the relationships of communities with their commons, the shifting nature of these resources, and the pressures that they face. It also explores the role of collective action in strengthening the systems that work around it. Through diverse stories of commoning from across India, the inaugural edition of this publication highlights how communities manage and govern their commons. It celebrates the enduring spirit of collective responsibility and sustainability for the well-being of current and future generations. आर कॉमन्स को एक द्विवार्षिक प्रकाशन के रूप में अवधारित किया गया है, जिसका उद्देश्य आज की दुनिया में कॉमन्स के महत्व पर एक साझा शब्दावली तैयार करना है.
यह कॉमन्स की बदलती प्रकृति, उन पर पड़ रहे दबावों और समुदायों पर उनके प्रभावों का विश्लेषण करता है। भारत भर से कॉमन्स के प्रबंधन की विविध कहानियों के माध्यम से इस पुस्तक के उद्घाटन संस्करण में यह बताया गया है कि किस प्रकार विभिन्न समुदाय अपने कॉमन्स का प्रबंधन करते हैं और सामूहिक जिम्मेदारी तथा स्थिरता की स्थायी भावना का जश्न मनाते हैं, जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। Not only are we fortunate to have this moment take place at the Commons convening, which is a fitting backdrop for this work, but we also are surrounded by some of the change makers whose stories are featured in this book. इस क्षण में मैं हमारे चेंज मेकर्स को लॉन्च के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पे। अनूप रंजन पांडे जी, चामी मुर्मू जी, जिसुदान दिसारी जी और नुकलू फोम जी, कृपया मंच पर आएं। मैं मंच पर अब उषा थोराट जी, जो पूर्व उप गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, उनको भी आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आर कॉमन्स का विमोचन करें और हमारे चेंज मेकर्स को प्रतियां प्रदान करें। As we share the copies of the book with our change makers, we request everyone to give a big round of applause. The launch would be incomplete without mentioning the team that has also curated this book. Pratiti Priyadarshini, Sahana Srinath, Kiran Singh, Naveen Isarapu, Pooja Chandran, Nishtha Relan, and Triza Naidu, as well as Arjun Swaminathan and his team. But a special mention goes for Shivangi Pant, who led the art direction and design with her creativity and precision, as well as Atulya Pillai, who brought the book to life through her vibrant cover and illustrations, adding a visual narrative to the work. We request Atulya and Shivangi to also come onto the stage. अनूप जी, चामी जी, जिसुदान जी और नुकलू जी, अपनी कहानियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। हम आर कॉमन्स का विमोचन करने और प्रतियां प्रदान करने के लिए उषा थोराट जी का भी दिल से धन्यवाद करते हैं। We're excited to share this work with you, and we hope it inspires both reflection and action. We'll be emailing a soft copy of the book to all of you. If you would prefer a hard copy, please feel free to let us know, and we'll be happy to arrange one for you.
In the end, thank you all for being part of day one, where we focused on ambitions. Tomorrow, we will turn our attention to approaches, beginning with a plenary session on connecting Samaj, Sarkar or Bazaar. We will further explore how communities are managing, protecting, and regenerating their commons throughout the breakout sessions that have been planned across the day. We'll delve into the successful methods being applied, discuss how challenges are being addressed, and consider ways to adapt and strengthen our strategies for greater impact. We look forward to continuing these inspiring conversations and discovering new paths together. Thank you. धन्यवाद। कल आपसे फिर से यही मुलाकात होगी।